ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਸਟ ਬਣਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਰੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਹੈਰੀ ਭਾਜੀ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਵੀਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਚਾ ਨੀਚਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਫਿਸ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ, ਆਪਾਂ ਮੱਛੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦਿਓ, ਮੌਕਾ ਖੁਦ ਦਿਓ। ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪਏ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਬੋਲੋ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਾਈਕ ਖੋਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦੇਣਾ ਫਿਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਨ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਬਿਫੋਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਤੇ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰਾ ਮਾਈਂਡ ਰੋਸਟਡ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਰੰਗੀਲਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਅਮਰ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿਓ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਸਟੈਨਿਕ ਵਰਸਸ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਹਵਾਲਾ ਨਾ ਦਿਓ ਰੰਗੀਲਾ ਰਸੂਲ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਈ ਸੀ 1927-28 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਰੰਗੀਲਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਾ ਦਿਆ ਜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਲਮਾਨ ਰੁਸ਼ਦੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਟੈਨਿਕ ਵਰਸਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਰੰਗੀਲਾ ਰਸੂਲ ਕਿਤਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਇਹ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਜੀ। थोड़ा जा बस 1 मिनट और सुन लो। 1 मिनट तो पता लग जाए ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਬੀयत की जमात अहमदिया दी तरबियत से। हमारी तरबियत बहुत अच्छी है, आप इसको ना सुनना जरा तरबियत, सुनना तरबियत जमात अहमदिया दे मुरब्बी साहब दी सुनना जरा। ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਗਿਆ ਸਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਾਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਲੀਜ਼, ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗਾਲ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਚੱਲ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਅਸਲੇ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਜਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੇ, ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਨਾ। ਗਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਲਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਬੋਲਿਆ, 10 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰੰਡੀ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦਾ ਖਲੀਫਾ ਸੀ 2 ਨੰਬਰ। ਉਹ ਭੈਣ ਚੋ ਗਾਲਾਂ ਬਗੈਰ ਗਾਲਾਂ ਫੇਰ ਕੱਢਦੀਆਂ। ਕੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ। ਗੱਲੀ ਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਆ ਕੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਖਾਂਦੇ ਗਾਲਾਂ। है भी थोड़ी जमात की तरबियत सिस्टम। देखिए मेरी बात सुनिए, अब मर्दों में ऑफेंसिव होना लाजम है। अभी देखिए आपने थोड़ी देर पहले एक बड़ा अच्छा बयान फरमा रहे थे जिसका मुझे दुख हुआ बहुत। मैं उस वक्त भी नहीं बोली, मैं तो इस वक्त बोली जब हमारे मैंने अपने आपकी माइक की आवाज़ थोड़ी आ रही है, माइक करीब करके बोलो। आप अभी थोड़ी देर पहले जो आप फरमा रहे थे दूसरों के, तो आप निकाल के जब वो तो एक गुस्से की हालत में बोल रहे हैं ना, गुस्से की हालत में मर्द होता ही गाली बात है जो कि थोड़ा सा ना हो। लेकिन थोड़ी मेरी बात सुनिए आप, अभी आप बड़े तहम्मुल से बड़े आराम से पता क्या फरमा रहे थे। मिर्ज़ा साहब तो बटेर खाते हैं और उसके साथ सूअर की लेग पीस भी रखते हैं साथ। ये आपने इतनी गलत बात करी है
जो आप वहाँ बैठ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਾਈਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਊਟ ਕਿਸੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ? ਕਾਲ ਆਈ ਆਪ ਹੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਜਗਾਓ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਅਮਤਲੀ ਸਿਸਟਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। आप ये बैठ के ये कह रहे भाई हैं सिस्टर ये सुनिएगा जरा गौर से आप। जी जाहिदा सिस्टर बताएं। क्या सुनूं मैं? अभी जो बात बयान कर रही थी कि मिर्जा साहब के बारे में ये कहा कि आप बहुत गलत बात की है ये वाली। जी हाँ, इन्होंने ऐसा कहा आमर नजीर साहब ने। मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि अभी ये बुजुर्ग हैं, मैं तो चाहती हूँ इनकी इज्जत करके बोलना है और हम भी फिर भी बोलेंगे। हमारी तो तबीयत वही है, मर्दों की बात मत करें, मर्द तो आपस में गाली गलौज करते ही हैं और वो गुस्से में भी आके औरतों की बात करें जो इतने तहम्मुल से मर्दों को सुधारने की कोशिश करती हैं। मर्द माँ एक औरत ही होती है जो अपनी गोद से नेक और शरीफ बच्चा पैदा करके तो माशरे में निकालती है। तो अब आप जो भी आए हैं, आपकी अम्मी की तो ये तरबियत नहीं होगी ना जो आप फरमा रहे थे कि हज़रत मिर्ज़ा साहब बटेर खाते थे और बटेर के साथ एक लेग पीस ज़रूर रखते थे सूअर का। कैसे कह दिया आपने? आपने आंखों से देखा या आप? ये मेरा सवाल ठीक है अब दूसरे को भी बहुत मौका गलत देना। बात हुई थी आपकी, मुझे दो सुने तो सही ना, सुने लेकिन तो सही ना। हई का यहाँ पे बड़ा सब्र था कि उसने आप हाँ ठीक है मजाक से जवाब दिया। अब मौका तो देना। ये आपकी गलती थी। इस बात पर आपको सिस्टर बात सुन तो लेना कि इस गलती किसकी है। जी मिर्जा साहब की हम तहरीर पढ़ रहे थे जिसमें मिर्जा साहब ने कहा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईसाइयों के हाथ का बना हुआ पनीर खा लिया करते थे, हालांकि यहाँ मशहूर था कि उसमें सूअर की चर्बी होती है। आप मानती हैं ऐसी बात? पनीर में कोई चर्बी होती ही नहीं है। पनीर एक दूध की बनी हुई चीज है, वो उसमें चर्बी का क्या तुक है? क्या फिर ये मिर्जा साहब ने गलत बात लिखी है। मुझे नहीं पता। ये देखें हमारे हवाले जो है ना, हम लेडीज हैं, मैं अपने आप को कह रही हूँ, हमें पता है कि पनीर में कुछ नहीं होता ऐसा, तो हम खुद बनाते हैं घर में पनीर। अगर उन्होंने लिखा है तो कोई किसी लोगों ने कुछ किया ही होगा, कोई हालात होंगे, आगे पीछे के हालात नहीं देखते आप लोग, वो बात ले लेते हैं बीच में से जिसको आपने बयान करना था। ईसाई लोग डालते होंगे, वैसे नहीं होता पनीर में कोई नहीं होता, सूअर नहीं होता। ईसाई नहीं होता, कोई खास होगा, तोहफा आया था, तोहफा भेजा था उन्होंने। अच्छा सिस्टर किसी दूसरे को भी मौका दे दो। अगर इजाजत दे रहे तो ये मैं बहन को बता दूं, ये किसी दूसरे को भी मौका दे दो। घटिया ये वाला बता देना, वाले के साथ बात कर लेना। और ये आप जब कह देते हैं जी ईसाई लोग डाल देते हैं बीच में, आपने किसको देखा हुआ है? ये मिर्जा साहब ने बाजी ठहर जाना, बीबी ठहर साहब ने ये इंकशाफ क्रिश्चियन भाई हैं, ये आपको खुद बता देते हैं ये डाल। जरा एहतराम से बात करनी, सिस्टर हैं तो नहीं, मैंने बीबी कहा है, मैं आमिर भाई और तो बदतमीजी नहीं की। अच्छा आपकी मेहरबानी, लेकिन बहनों के साथ जी ऑफ कोर्स हमारी प्यारी बहन है, मैं जानता हूँ सारी बहनों को। अच्छा जी, तो अगर मिर्जा साहब ने ऐसा इंकशाफ किया है तो लाजम बात है कि मिर्जा साहब ने वो वाली चीज़ जो है वो खाली होगी या उन्होंने बनती देखी होगी, नहीं तो ये बात तो बिल्कुल समझ में नहीं आती। हाँ, दूसरी बात रही जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से उन्होंने इस तरह का इल्ज़ाम, बहतान, और ये मैं तो उसको गुस्ताखी के ज़िम्मे में लूँगा ऐसी बात करना भी, क्योंकि इस्लामी अक़ायद में ये बड़ी सख्ती से इसकी ममानियत है। वो नहीं कर सकते, ये सारी किताबें बदली हुई हैं आप लोगों के। यहाँ पे मैं जहाँ रहती हूँ, यहाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि आपने तो एहतरामन खामोश रहते अल्लाह के नेक बंदे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। ये मिर्जा साहब ने ऐसी बात लिख के अपने ऊपर बहुत यहाँ पे हमारे मुसलमान भाई सिस्टर खुश हो जो उनको बात कर लेने, हजरत में उनको ऐसे ना करें। तो अगर मिर्जा साहब ने ऐसी बात कर दी है तो उन्होंने खुद ही उस पे सारे का सारा बर्डन अपने आप पे डाल दिया कि इसका सबूत भी दें। हालांकि अगर देखिए यहूदी रवायात भले मसीही रवायात हैं, ऐसी कोई शवाहद नहीं मिलते कि जी उस चीज़ के अंदर, ये जो पनीर है इसके अंदर कोई सूर या ऐसे तो बस सख्फिरुल्लाह मिन ज़ालिक ऐसी चीज़ डाली जाए। दूसरी बहन ने बात भी कर दी है, ये वाली आपने ये दूसरी उम्मे बहन ने ये एमा बहन ने ये बात भी कर दी है जी, वो ईसाई करते होंगे फिर कुछ होगा। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ईसाई डालते होंगे पनीर में। भाई हम तो नहीं डालते हैं, आप क्यों झूठ बोलते हैं?
सारे 1400 साल गुजर गए मिर्जा साहब के आने से पहले, ताकि जितने भी इस्लामी रवायात हैं, मुस्लिम भाई हैं, किसी ने भी ऐसा इंकशाफ नहीं किया, मिर्जा साहब को ही होना था। तो पीछे वालों की तो कोई ऑथेंटिसिटी होती है, कोई सबूत होता है, हवा में नहीं छोड़ते। जी हमें नहीं, आप लोगों के मौलवियों ने बदल दिया किताबें। हाँ, मैं गलत बातें ये देखते हैं ना, वो देखते हैं। दिखा रहे हैं ना। ये आपकी वेबसाइट, आप चुप करें सारे, ये आपकी वेबसाइट है। हाँ, तो हमारे किताबों में से जुमले बदल देते हो आप लोग। अभी आपकी वेबसाइट से मैं, मेरी बात सुने ना, आपकी वेबसाइट यहाँ इंटरनेट से खोलूंगा, जुमला बदल दूंगा मैं। ये आपकी नहीं, वो बदल चुके हुए हैं, जो आप पढ़ रहे हो ना आज बैठे हुए, आपके बड़े जो थे ना वो बदल चुके हुए हैं इन चीजों को। उन्होंने मजहब को बहुत खराब किया है। सिस्टर, ये आपकी वेबसाइट है, मैंने क्या बदलना है इसका? नहीं, आपने नहीं बदलना। जो किताबें वेबसाइट में डाली हुई हैं उसमें जो लिखा गया है, चेंजेस तो करते हैं ना आपस में। अगर उनकी नहीं, ये तो आपके लोगों ने डाली है ना। हम क्यों डालेंगे गलत बात? भाई ये आपकी वेबसाइट है तो आपके लोगों ने डाली है ना, हमने थोड़ी डाल दी वहां जाकर। लेकिन हम लोग इस देखिए, ये एक उस आदमी से बात करें जिसको इल्म है, मीर सलीम साहब से बात करें ना, वो आपको इसका टक्के से जवाब देंगे। सही वो बात ऐसे करते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया, दिखाया नहीं पहले, ऐसे बात करते हैं। अब नहीं, तेरी वो बहन करते तेरी बहुत माँ अच्छी बात करते हैं। गालियां देते हैं भाई वो। ये देखें, ये बड़ा देखें, गाली बाज तो फिर वो शातम बोलते हैं। इंसान है वो। चुप करो सारे। ये देखें, आपकी वेबसाइट खोल के मैंने ये अखबार निकाला, ये तारीख पढ़ेंगे आप खुद भी अपनी वेबसाइट पर जाकर खोल के ये देख सकती। क्या तारीख लिखी हुई है? 23 फरवरी 1933। 22 फरवरी 1924। हाँ, 22, अच्छा 1924। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? मसीह मौद का एक पुराना मकतूब पुराना मकतूब। इसमें ये बात लिखी हुई है, मैंने कोई अपने पास से तो नहीं कही। नहीं, यहाँ से वो चेंज कर देते हैं अपनी मर्जी की। मौलवियों ने पुराने से बहुत इन्होंने जमात को खराब किया है, बहुत सारी गलत बातें डाल के। ये मौलवी, अच्छा वेबसाइट आपकी है, मौलवी आपकी वेबसाइट में घुस गए हैं। नहीं, किताबों में चेंज कर देते हैं ना वो। सिस्टर किताबें आपकी वेबसाइट पर हैं, कौन चेंज कर देते हैं? अच्छा, मुझे एक बात बताए, आप लोगों को तो कोई इल्म नहीं था। आज से कोई 8-10 साल पीछे की बात है, मैं तो शुरू से सुनती आ रही हूँ बहुत सारे लोगों को, और जो अब वो बेचारे मर भी गए हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। अपने कई ये देख लें क्या उस वक्त भी ये लोग झूठे इल्जाम लगाते थे जमात पर, बाद में खुद ही झूठे हो गए थे। सारा कुछ उनका सबूत हो जाता है बाद में। और असलम परवेज का वाकया और चलियोटी का वाकया, ये तो कहानी शरीफ है ना। हम तो आपकी आंखों के सामने सबूत रख रहे हैं, वो कहानी शरीफ उनको सुनाए जिन्होंने आपके साथ कुछ झूठ बोला। और हमें तो इल्म नहीं है, हम कुछ नहीं कह सकते। ये आप किसी से मुनाजरा कर ले, मुस्लिम से मुनाजरा कर ले। को मेरे सामने बिठा देंगे, आप बिठा देंगे इस बात पर? मैं बिठा दूंगी। मैं उनको कहूंगी कि जरा इधर से देखें, ये इधर क्या हो रहा है, इधर जरा ठीक करें आप। हाँ, अभी बुलाएं, हम इधर ही बैठे हैं। ले आए, अभी ले आए उन्हें, बुलाएं, अभी ले आए। जरूरी तो नहीं ना अभी मॉडरेटर आप होंगी तो उन्हें ले आए। आप उनकी ब्रॉड पे जाएं, पूछें कि अमर नजीर से बात करनी है, पूछ के तो आए जरा एक सेकंड। मैं मुझे तो पता नहीं वो बात करते हैं। आप हमारी बहन हैं, आप एक सेकंड। वो मुझसे नहीं अमर भाई बात करते। वो तो बनाए तो फिर अभी आज इतवार को, आज 9 बजे उनका मुनाजरा है यूके टाइम के मुताबिक। 8 बजे वो सुने ना जरा, वो जवाब देंगे कैसे। तो हमने 20 बार सुना हुआ है, हम उनको जानते हैं। पिछले हफ्ते भी सुना था, तो आप मौलवी आपका मैंने अभी आपके सामने सबूत उसका लगाया नहीं। मैं नहीं जानती, मुझे तो पता नहीं, मुझे खुद नहीं इल्म, मैं क्या करूं। ये जिनको इल्म है वो आपको लगाए बगैर ही जवाब दे देंगे। मीर साहब से बात करें, काफी भाइयां नादिर हैं और भी कितने लोग हैं। सिस्टर, ये आपके मीर साहब भी बोल रहे हैं, ये सुने जरा। वो है, इनको तो पड़े बड़े, इनको लानत पड़े अल्लाह की इनके ऊपर। ये तो मुर्ताद लोग हैं, इनको तो अल्लाह ताला ने खुद निकाल दिया। ये पत्ते सूखे पत्ते झड़ जाएंगे। इनकी हजूर की वो हजूर ने कहा हुआ था कि जमात में जो मुर्ताद होते हैं उनके सूखे पत्ते झड़ जाते हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे। ये आप एक के बदले 1000 देता है। हमें इन लोगों की जरूरत नहीं है। ये तो वो है जो धुतकारे हुए हैं और इनको अल्लाह पूछेगा। और एडिटेशन करते हैं, अभी एजिटेशन कर रहे हैं लोग। वो मीर साहब फॉल मारन लाभ पे।
आप इनकी शक्ल परे करें, हमें नहीं आ गए चाहिए। आपके मीर साहब, मेरे ख्याल है आ गए। जगह बनाओ भाई, जगह बनाओ, मीर साहब को ऊपर लो। आ गए, इधर ही आ गए मीर ओ साहब। समझो ते लिबरो दी आए ने। अच्छा ये देखिए जरा, ये मीर साहब की जुबान सुनो। तो उमर इन्हां दा खलीफा है ਉਹਨੂੰ ये मीर साहब नहीं है भाई, इसको पूछो ये ये मुर्ताद है, आवाज किसकी? हाँ जी ये मुर्ताद है, देखो जी गल असले वे कौन मुर्ताद है? ये सिस्टर आप पता नहीं क्या देख रही है, मेरी तस्वीर है। मीर सलीम को कह रही है। मैं इनको नहीं कह रही, मैं मीर सलीम साहब को कह रही हूँ, मास्टर माइंड। ये मुर्ताद है। वो साडी मुर्ताद पूरी है। जमात बाजी, आपकी पूरी जमात में सिर्फ एक ही बंदा अहमदी है, वो है तलत ज़हूर मलिक। उससे नहीं। बेहतरीन कोई बंदा है ही नहीं। मैंने उनको ना कभी सुना ना मुझे उनका पता, मुझे क्या तो मीर बात है, मास्टर माइंड उनका का पता है। फहम जो है वो क्या ही बात है उसकी, बाकी सब फारग है। नहीं मीर सलीम मुर्ताद है। क्या नाम बताया आपने? मलक ज़हूर मलिक, अच्छा, वो भी कोई है? शहनशाह खिताबत। तो ये अहमदी है। हाँ जी हाँ जी, आप ही नहीं जानती, असली अहमदी तो वो है, बाकी तो सारे मरजई हैं। हाँ जी बिल्कुल। पर भाई एक मिनट हजरत नूर साहब, आमिर भाई उन्होंने मीर सलीम के बारे में कहा है कि वो मुर्ताद है। ये अहमदी नहीं है, ये मेरे पास मुर्ताद है। रिकॉर्डिंग है, मैं इधर चलवा सकता हूँ जो उन्होंने बातें की हैं। सबसे उन्होंने बोला सबसे बड़े गालीबाज ये है, बीच में मीर सलीम और दूसरे तीसरे। ये मलक साहब नहीं, आप ने उनको दलेरी कुछ नहीं से कह के सकते। साथ बयान दिया वो है। कभी गाली नहीं देते, वो थोड़ी सी वो उस वक्त थोड़ी बदतमीजी जरूर कर देते हैं कि जब वो कोई गलत बात करे या सही बोले ना या सही अटकेलियां करे तो फिर वो गुस्से में आते हैं, अदरवाइज गाली उन्होंने कभी नहीं दी। बाजी सर, आके ये अभी आपने- पूछे, ये सिद्धू जट बैठे हैं, ये भी जमात अहमदिया से हैं, इनसे पूछ लें। मीर सलीम मेरी लाइव पे आया था, 2 सवालों का जवाब नहीं दे सका था वो। अब ले आए ना हमारे सामने ला के दिखाओ। आपका बंदा लेके आए भाई, हमें वो गालियां सुननी नीचे मीर मुझे सलीम आया भी हुआ है, नहीं जगह है, बनाओ संधू भाई आप। चलो मैं नीचे जाता हूँ, उसको पिक करो। जी उसको पिक कर लो आप ही उनका बेशक। आज यूके टाइम के मुताबिक 8 बजे उनका मुनाजरा है ना, वो सुने किन का मुनाजरा है? मीर सलीम साहब का। उनकी हमारे साथ बात करवा नहीं सकती हैं आप खुद आप दावत दें ना उनको, क्यों मैं क्यों कराऊंगी? नहीं, हमें तो वो गालियां देते हैं। अभी आपने सुनी नहीं है, वो गालियां दे रहे थे मुझे, माँ बहन की नंगी। नहीं वो उसे मैं मुझे नहीं पता उनकी आवाज थी किनकी थी, वो गाली किसने दी है। आप रिकॉर्ड करके ले जाइए, उनसे पूछ लें, उन्हीं की आवाज ना हो तो मैं आपसे माफी मांगता हूं। रिक्वेस्ट डालिए, आ जाओ ऊपर। मुझे नहीं जरूरत इन चीजों की। मतलब है कि अगर आमिर अगर भाई मैं आपके झूठ पास बोलूंगा। दूसरा फोन है? आमिर भाई दूसरा फोन है आपके पास? हाँ जी। अच्छा, मेरी प्रोफाइल पे जाएं, उधर एक अगर आप तलत अहमदी मलक हैं साहब की एक तो फिर वीडियो आप लगी है, उनसे- इनको आपको वो दिखाएं। गालियां क्यों देंगे? अगर आप अहमदी हैं तो फिर आपको क्यों गालियां देंगे वो? नहीं, वो गालियां सबको देते हैं, वो तो गालीबाज हैं बड़े पक्के, आपको नहीं पता? नहीं, गलत है, ये गलत है, मैं नहीं मानती। अच्छा अभी वैसे आपके आमिर सामने भाई, गालियां उन्होंने दी हैं। वो तो इनकी इतनी अच्छी नॉलेज है, वो तो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा जवाब देते हैं। गालियां दे रहे हैं आपके सामने और आप कह रहे हैं नॉलेज है उनका। वो गाली नीचे देना बैठा उन्होंने हुआ है, नहीं आ रहा मीर सलीम। मीर सलीम नहीं आ रहा, मैं रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ, रिजेक्ट कर रहा है। उसको मेरी बात सुने सिस्टर, एक काम करें, आप ऐसा करें, उनकी ब्राड पे जाएं और उसको कहें कि आमिर नजीर से बात करनी, पूछ के तो आए, होता क्या भला? बहुत जरूरत है, मैं क्यों आपका कहना मानूं? वाई मतलब अगर उनकी आज उनका मुनाजरा है, वो मैं उनको अगर आप चाहती हैं, अगर आप उनसे बात करवाना चाहती हैं तो उनसे पूछना तो मैं पड़ेगा। नहीं करवाना चाहती, मैं तो करवाना नहीं चाहती। क्यों? आपके सामने ये हवाला रखा है सुअर की चर्बी मैं वाला, तो उसको- आप कहते हैं आपको इल्म नहीं है, हमारे किसी आलम से बात करो। आलम आपके गालियां देते हैं, किससे बात करें? आप कहाँ के अहमदी हैं मुझे ये बताओ? आप लाहौरी जमात के हैं या दूसरे हैं? हम तो भाई क्या आप सिस्टर आप समझ नहीं है, लाहौरी जमात के ये आपके साथ ऊपर बैठे हुए हैं, हम तो ना लाहौरी के। नहीं, आप जो कह रहे हैं अहमदी हैं तो वो तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरी बात को समझा और आराम से बैठ गए। उन्होंने कोई अपनी गलती का एहसास कर ले, वो इंसान अच्छा होता है। नहीं, कोई गरज नहीं है, कोई मीर सलीम साहब फूल शूल मार के निकल गए। मीर सलीम साहब फूल शूल मार के चले गए। ये कह रहे हैं कि आप अहमदी हैं, तो फिर आपका और उनका झगड़ा कहेगा? मुझे ये बताएं। नहीं हम अहमदी नहीं, हम तो मुसलमान हैं। हम भी मुसलमान हैं, आप मुसलमान हैं तो हम भी ये ज्यादा मुसलमान हैं। पक्के आंधी है, इतना आप नहीं मिर्जा साहब को पढ़ते जितना ये पढ़ते हैं। नहीं आप लोग कुरान भी नहीं पढ़ते, आप तो हमारी किताबें, हजूर की किताबें आपके हर घर में पड़ी हुई हैं। हाँ हाँ, वो हम का नाम पढ़ कोकर नहीं आता था। के आपके हजूर की किताबें पढ़कर ही हमें पता चला है कि आपके हजूर ने हमारे हजूर को गालियां दी और कहा है कि वो नहीं। सूअर की चर्बी वाला पनीर खाते थे।
वो गलत है, वो आप ही खाते होंगे, वो तो कभी खा ही नहीं सकते। ये खाता आपके सामने मैंने रखा है। पनीर में चर्बी नहीं होती, पनीर सिर्फ दूध और फिर झूठ लिखा है उन्होंने, मेरी सिस्टर, ये झूठ लिखा है आपके मिर्जा साहब ने। वो उनका नहीं, आप लोगों ने बदला, आपके बड़ों ने। जिसने बदला उस पर अल्लाह की लानत डालें। हाँ जी बिल्कुल, लानत हो उसको जिसने बदला। मैं आपको बताती हूँ, मुझे आप ही देख नहीं, जिसने लिखा है उसके ऊपर भी लाना डाल दे, जिसने वो लिखा हुआ है ना उसके ऊपर लाना डाल दे। चले, मैं तो जी अल्लाह पे छोड़िए सब कुछ, आप और नहीं, आप एक बार कौन अनंत एक बार प्लीज एक बार कह प्यारे बंदी, वो अल्लाह के प्यारे बंदे हैं और अल्लाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम और उनके कुर्बान होने वाले इंसान, और हम सब उन पे अपने कुर्बान होने वाले लोग। वो कुर्बान जितने हुए वो तो हमने देख ही लिया, पिछले 2 घंटे से हम कुर्बानियां उनके देख रहे हैं। हाँ तो क्या किया हमने आप लोगों को? गालियां दी, हमारे नबी को गालियां दी उन्होंने। हमने तो आपकी इस्लाह की है, जो आप गलत बातें करते हैं इस्लाह की है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी हैं गंदी, कह रहे हैं कि वो सूअर की चर्बी वाला पनीर खाया करते थे। नहीं वो नहीं कह सकते कभी नहीं। इसलिए मैंने, अच्छा मेरी बात सुने ना, इसलिए मैंने कहा कि आपके मिर्जा साहब जब बटेर का गोश्त खाते थे उसके साथ लेग पीस रखते थे, सूअर का लेग पीस रख के खाते थे। आपको गुस्सा लगा है हमारे नबी के बारे में? अच्छा, आप खुद जाके देते थे उनको फ्राई करके? तो मिर्जा साहब पनीर खुद दे के आते थे हमारे नबी को? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं रखा। ये आपके अखबार में लिखा हुआ है, आपकी वेबसाइट से मैंने खोल के दिया। ये गलत है, नहीं मानते। हो गई है, जो आपकी अखबार आपकी वेबसाइट पे पड़ी है वो गलत है तो गलती मेरी है। नहीं तो पनीर खाना तो बुरी नहीं है, पनीर में तो होता ही नहीं वो। भाई फिर अगर पनीर में नहीं होता तो मिर्जा साहब ने झूठ बोला है। मैं नहीं मान सकती वो झूठ बोलते, वो झूठ नहीं बोल सकते। अगर झूठ नहीं बोला तो क्यों लिखा है कि पनीर की चर्बी वाला, वो चर्बी सूअर की चर्बी वाला पनीर खाता है? ये मैं नहीं जानती, और पुरानी बात मुझे क्या। सर अगर आपको नहीं पता, आप नहीं जानती, मैं 1950-40 की थोड़ी हूँ मुझे पता हो। सिस्टर मेरी बात सुने, अगर आप नहीं जानती तो वहाँ पर इल्म मौजूद है ना, जाके उनसे पूछें, अपने आलमों से इल्म लेकर आए। वो जिस वक्त मैं कभी कैजुअली बात करूंगी तो पूछूंगी जरूर, लेकिन मैं आपने के कहने पे स्पेशली ऐसा काम करने वाली हूँ। अच्छा मैं आपको उसका दे देता हूँ, स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, आप रिकॉर्ड कर लें। मुझे नहीं चाहिए कुछ। नो नहीं, आप रखे पास, मुझे नहीं चाहिए। हिम्मत करके कुछ तो कर लेना, जिंदगी में कभी काम आएगा। परेशानी है, ये काम आएगा आपके, ये आपके मसीह मौत का मकतूब है, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। नहीं मुझे नहीं चाहिए ना, मुझे नहीं चाहिए। आपको पता तो लगे ना कि आपके मसीह मौत ने हमारे नबी को। मैं मानती नहीं, वो नहीं लिख सकते। आप बोलो कि सब गलत है बातें हैं। आपकी अंधी अकीदत का तो हमारे पास कोई इलाज नहीं, आप मानती नहीं, आप मानती नहीं। हमने हमारे पास भी इलाज नहीं कि कौन सी किताबें आप दिखा रहे हैं। मतलब अखबार आपकी आंखों के सामने पड़ा और आप कहती है मैं मानती नहीं, मैं मानती नहीं, मैं मानती नहीं। मैं नहीं मानती, क्योंकि वो कह नहीं सकते, वो गलत बात कर ही नहीं सकते। वो अल्लाह के प्यारे, अल्लाह की तरफ से भेजे, अल्लाह के नबी के दुश्मन थे, अल्लाह के नबी के दुश्मन थे वो। नहीं, दुश्मन आप लोगों के हैं बड़े वाले जो हमारी आंखों के सामने ये दुश्मनी पड़ी हुई है। आपने ले लिया स्क्रीनशॉट? नहीं, मैं नहीं लेती हूँ, मुझे चाहिए नहीं, आप अपने पास रखें। आपको स्क्रीनशॉट, आपको सहारे नहीं चाहिए, आप सहारे ढूंढते हैं, नुकरों में घुस के, बिलों में घुस के ऐसी चीजें निकाल के लाते हैं, अच्छी चीजें देख के गलत बातें देख के। उन्होंने सिस्टर उन्होंने नुकरों में झूठा साबित बात तो सुने ना, उन्होंने कोनों खुदरों में ये गंद छुपा के क्यों रखा? हमारे नबी को जो गालियां दी हैं सामने आके दें। वो नहीं गालियां दे सकते कभी नहीं, मैं नहीं मान ये गाली, इससे बड़ी गाली क्या है हमारे नबी के? ये गाली नहीं है, हरगिज़ नहीं गाली, मैं नहीं मानती। उन्होंने नहीं दी है, वो दे नहीं, उन्होंने नहीं दी है खत। मैंने, मेरी बात सुने ना, उनके तो आप अच्छी किताबें पढ़ ही नहीं सकते, आपकी किस्मत में नहीं है। हद हो गई है ये। आमिर भाई आपको एक नया इंकशाफ करता हूँ कि किताबुल दज्जाल, ये अंग्रेज सरकार की किताब लिखी, उसमें लिखा है कि मिर्जा साहब विस्की के शौकीन, विस्की के साथ वो सुअर की चॉप्स फ्राइड खाते होते थे, मिर्जा गुलाम कादियानी साहब। हाँ जी बिल्कुल, आपको ऐसे लोग तो मिलते हैं विस्की के साथ, विस्की नोश फरमाते थे, और उसके साथ किताबुल दज्जाल का हवाला है। अबाजी प्यारी बहन, आप लोग ऐसी बातें ढूंढते हैं जगहों से ताकि आप लिखवा के देते हैं। हम नहीं, हम आपके मुखालिफ हैं, हम आपके मुखालिफ हैं, हम तो ऐसी बातें ढूंढेंगे, ये बात ठीक है आपकी, तो ये गुनाह है ना। लेकिन अगर मिर्जा साहब ने सुन तो लें, मना किया है, सुन तो लेना, दर्जे में गैबत करने वाले होंगे, सुन तो लें सिस्टर, आने वाली जो है ना, सुन तो लेना। अगर आपके, मेरी बात तो सुने मेरी बहन, अगर आपके मिर्जा साहब ने
ये गंदी बातें नबी पाक के बारे में ना लिखी होती तो हम कहाँ से ढूंढ सकते थे ये? देखें कितनी गंदी बात लिखी है ना, शर्म आ रही क्या है। बात लिखी है? चलो शर्म अमर भाई वो जो नमाज लिखी हुई है मिर्जा साहब ने, नमाज लिखी हुई है हशू यार हुजू वाली, मैं चुप कर जा तनु अल्लाह दे नाम। हमारे नबी से बढ़कर किसी की इज्जत हो सकती है? मेरी बात सुने, आपने बात से बात निकाल के इतनी लंबी कर दी। नबी मैं पाक की इज्जत मेरे पास नॉलेज नहीं है, मैं इतनी बात नहीं कर सकती। आपके पास नॉलेज नहीं है, जिनके पास नॉलेज है वो गालियां देते हैं। चलो ठीक है, फिर आप ना जाएं उनके पास, क्यों जाते हैं? हम उनके पास ना जाएं। ये जो हमारी सिस्टर आई हैं अमतुल हई, इनके बाप की तरबियत का असर है, ये आपकी जमात की तरबियत का असर नहीं है। वो खामोशी से सुन रही थी, चलो ठीक उनको है। हम बता रहे थे कि आपके चलो मिर्जा ठीक है, साहब कोई बात नहीं, कोई वो हमारे भी तो नबी को गालियां दी हैं। अगर उनकी तरबियत का असर है तो वो भी जमात के बंदे थे ना। वो क्या हुआ? हाँ, वो आपकी जमात के तशद्दुद का शिकार हैं, आपकी जमात के जुल्म का वो शिकार, मजबूर अपनी जगह पे नुक्कर पे लग के आज बैठे भी हैं। वो हमारी जमात वाले बेचारे छुरियां चाकू कुल्हाड़ियां लेके खड़े हुए आपकी हैं। आओ हमारे घर में काटो। आपकी जमात ने उनके साथ क्या सलूक किया है, हम अब क्या बताएं आपको? ना हमारा मुंह खुलवाएं, मुंह ना खुलवाओ, हम पे जाहिर है तुम्हारा बातन। तो वो आप जैसे होंगे जिन्होंने जुल्म किया है। हजरत मसीह मौद ने नहीं किया, उनके नेकोकारों ने नहीं किया, उनके खलीफाओं ने नहीं किया, उनके खलीफों ने किया है, उनके नहीं किया भाई, अल्लाह ने किया, अल्लाह का नाम लगाया, अल्लाह अल्लाह ने का किया। नाम, अल्लाह दे नाम ला दो, अल्लाह के नाम। क्यों नहीं बिल्कुल किया? सिस्टर सच फरमा रही यह हैं। जुल्म, ये एक और देख लें जी, यहाँ पे बताएं जी है कि किसने किया सारी जुल्म, हो रही वो है। बताएं सिस्टर बताएंगे अभी किसने किया जुल्म। बहुत बहुत तंग किया है भाई मैंने खुद जुल्म किया भाई अपनी जान पे। सिस्टर। मेरी बात सुने, जालिम हूँ। अमतुल है, सच्ची बात करें, सही बात करें, सच सच बोलें, किसने जुल्म किया है? किसी ने भी नहीं किया, अल्लाह ने किया और मैंने किया। नहीं, जो कुछ अल्लाह के किया। जुम्मे ना लगाएं, अल्लाह के जुम्मे ना लगाएं। आपका बच्चा है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। सिस्टर राय नहीं प्लीज। 2 बार आपकी जिंदगी का फैसला किया है इन्होंने। भाई इनकी क्या मजाल है, अल्लाह ताला ने कौन नहीं कहा तो मेरा नहीं काम हुआ, मैं क्या कर सकती अल्लाह हूँ? ताला की मशीयत तो जो कत्ल करके आता है कातिल, मशीयत उसमें भी मौजूद होती है, लेकिन ये अल्लाह ताला की रजा नहीं, मशीयत और चीज है। मैं बात और कर रहा हूँ, आप अल्लाह ताला की जुम्मे क्यों लगा रही हैं? भाई वो दरिया की धार पे जो अकड़ी हुई चीज जाती है ना, जब इंसान की वो अकड़ है उसमें इंसान ने झुकना ही नहीं, तो फिर अपनी सजा तो पानी है ना। आप आकड़ खान थी? मैं आकड़ खान हूँ। आपके अब्बू भी आकड़ खान थे? वो भी आकड़ खान है। चौधरी साहब भी आकड़ खान है? वो भी आकड़ खान है। इसलिए आपको सजा मिली है। और क्या? ये है बात, किसे वकील करें किससे मुंसफी चाहें, बने हैं अहले मुद्दई भी मुंसफी। ये है बात। जब हाँ, लड़की वालों को झुकाते हैं ना लोग, लड़की वाले ना झुके तो फिर नहीं झुकना चाहते तो ना झुके, भाई उनकी मर्जी। लड़के अब पाकिस्तानी, हमारा माशरा तो कहता है ना लड़की वालों को झुकाओ, लकीरें निकलवाओ। तो जब लकीरें नहीं निकालनी, हमारी मर्जी। आपने लकीरें निकाल आजादी है, हमें आजादी है, हमें आजादी है। अल्लाह ने आजाद पैदा किया। नहीं, आप नाक से लकीरें निकाल देती तो बच जाती ना। मैं क्यों निकालूं? मैंने निकाल दी है, फिर भी नहीं मुझे माफ करना किसी ने। मैं बिक भी जाऊं, लोहे की भी बन जाऊं, तो किसी ने माफ नहीं करना। क्योंकि वजह क्या है? क्योंकि ये इंसान की फितरत है, इंसान नाशुक्र है। अल्लाह ताला ने बताया इंसान नाशुक्र है, इंसान आगे से आगे, इंसान की हवस और प्यास बुझती नहीं है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मसला ये है कि इन्होंने आपको इंसाफ दिया नहीं। जायदा का कसूर तो नहीं है ना, वो मुझे क्या, उनको तो मैं जानती की बात नहीं कर रहा, मैं सिस्टम की बात कर रहा शायद मुझे जानती हूँ, मैं इनको नहीं जानती। मैं सिस्टर की बात नहीं कर रहा, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। सिस्टम ने आपको इंसाफ दिया? सिस्टम ने नहीं दिया। क्यों? अब मैं सिस्टम हूँ, मैंने बनाना है। अगर इंसाफ मुझे नहीं मिला तो मैंने अपने लिए रास्ता खुद बनाना है, मैंने इंसाफ लेना है, ये मेरा काम है। सिस्टम ने नहीं दिया तो सिस्टम फेल है। अब मेरा काम है कि मैं सिस्टम कोई बनाऊं या कोशिश करूं, जो मुझे अल्लाह ने सलाहियत दी है, मैं अपने लिए रास्ता बनाऊं, खुद कोशिश करूं। लैसल इंसानी इल्ला मा सा, इंसान के लिए वो कोशिश करता है।
اگر مجھے محبت آدمیوں سے ہوتی تو میں آدمیوں کے پاس بیٹھی ہوتی، مجھے ماں باپ سے تھی، اپنے آپ سے تھی، میں اپنے پاس بیٹھی ہوں، ماں باپ کے ساتھ بیٹھی ہوں۔ یہ تو انسان المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے اسے محبت ہوتی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، جب محبت ہی ہاں، یہ جو سسٹم ہے یہ کس کے نیچے ہے؟ کون انچارج ہے اس کا؟ یہ سسٹم کون سا ہے؟ ٹک ٹاک کا؟ نہیں، جس سسٹم نے آپ کے ساتھ بے انصافی کی ہے۔ اچھا، جس نے بے انصافی کی ہے یہ تو اللہ جانتا ہے نا کس نے کی ہے، مجھے کیا پتا کس نے کی ہے، دلوں کا حال مجھے تو نہیں نہیں پتا تو ہوتا ہے نا، یہ اندر پورا کس سسٹم ہے نا، جس پورا سسٹم نے آپ کو انصاف نہیں دیا وہ چلاتا کون ہے، اس کا مالک کون ہے، اس کا سربراہ کون ہے؟ مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے نا، سربراہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ نہیں، سسٹم کی میں بات کر رہا ہوں۔ سسٹم آگے بشری کمزوری ہے نا، جب ایک رکاوٹ آ جائے، اب جنگ میں جاتے تھے وہ حضرت خدیجہ کے خاوند تھے، وہ جنگ میں جاتے تھے، وہ جو بھی سفر تجارت کرتے تھے تو وہ وہیں پہ فوت ہو جاتے تھے، واپس سے نہیں آتے تھے۔ وہ اور بات ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ انسان کی کوئی مجبوری ہوتی ہے۔ آپ کی زندگی برباد کرنے میں آپ کا بچہ اکیلا ہے، باپ کے بغیر ہے، آپ کی زندگی تنہا ہے، اس کا ذمہ دار یہ سسٹم جس نے آپ کو انصاف نہیں دیا، اس سسٹم کا کریٹر کون ہے، اس کو چلانے والا کون ہے، اس کا مالک کون ہے، یہ میں پوچھ رہا ہوں۔ بھئی لوگ چلا رہے ہیں نا مل کے سسٹم، دنیا کے جو ہمارے لوگ ہیں، افراد ہیں، وہی چلا رہے ہیں نا۔ ان کا کوئی سربراہ تو ہوگا نا، کوئی ہیڈ تو ہوگا نا۔ ہیڈ کوئی نہیں ہے نا، ہیڈ اللہ ہے نا، جب کام خلیفہ آپ کا سربراہ نہیں ہے سسٹم کا؟ خلیفہ تو سربراہ ہے، لیکن خلیفہ کی چلنے کوئی دے تو پھر نا، خلیفہ نیچے جو خلیفہ کی اس خلیفہ نے سسٹم پر جس نہیں پہ چلتی؟ کام سپرد کیا ہوا ہے وہی نہ کام اپنا صحیح کریں تو پھر خلیفہ کیا کر سکتا ہے یہاں پہ؟ اگر وہ کام نہیں کرتے تو خلیفہ کیوں نہیں ان کو کنٹرول کر سکتا؟ خلیفہ کیوں نہیں کنٹرول کر سکتا؟ خلیفہ کنٹرول کرتا ہے، ان کو بالکل کرتا سزائیں ہے۔ دے، جو لوگوں کو انصاف۔ مجھے تو سزا دی نا خلیفہ نے۔ کتنی سزا آپ کو دی؟ بھائی وہ میرا پرسنل معاملہ، میں یہاں پہ نہیں ڈسکس کرنا ان کو سزا کیوں نہیں دی جنہوں نے آپ کے ساتھ بے انصافی کی؟ ان کو کیوں نہیں سزا دی؟ بس یہی ہے نا، انسان جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ یعنی وہ طاقتور تھے، سیدھی بات کہیں نا۔ ہاں وہ طاقتور تھے، بالکل وہ طاقتور تھے۔ یہ ہے جی نظام آپ کا، یہ ہے جی اللہ والے اور اللہ کے نیک بندے۔ عامر بھائی اگر یہ بولیں گی تو پھر دوسرے بھی مطلب عبرت حاصل کریں گے نا، ان کے ساتھ تو جو ہوا۔ بول رہی ہیں، چپ کر جو۔ اچھا سسٹر زاہدہ آپ مائک اوپن کریں، لگا ہے پتہ یہ اللہ والوں کی جماعت کا اور جماعت کے سسٹم کا؟ یہاں پر جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے میری بہن۔ یہاں پر جو طاقتور ہے نا اس کو خلیفہ نہیں کچھ کہتا، اس کو سزا دیتا ہے، یہ جو تنہا لڑکی ہے اس کو سزا دیتا ہے۔ آپ کھولیں مائک زاہدہ سسٹر۔ ہیلو میری بہن، کھولیں نا مائک۔ وہ چلی گئی ہیں۔ نہیں میں تنہا نہیں تھی، میرے ساتھ اللہ تھا، میرے ماں باپ تھے، میرا اللہ تھا میرے ساتھ، میں تنہا نہیں تھی بالکل۔ اللہ تو سب کا ہے نا، اللہ تو سب کا ہے۔ آپ کے ماں باپ تھے، آپ کمزور تھیں، اسی لیے آپ کو انصاف نہیں ملا نا۔ نہیں میں نے انصاف لیا نہیں۔ آپ لے سکتی نہیں تھی۔ اب آپ دونوں کو مجھے تو لگتا ہے کوئی کال کر رہا ہے۔ نہیں میرے میں تکبر تھا، میں نے جھکنا نہیں تھا، میں ماں باپ کے آگے جھک گئی، خاوند کے آگے نہیں جھکی، میری مرضی، میں نے ماں باپ کو چوز کر لیا۔ میری بات سنیں صحیح، آپ نا یہ جو پتہ کیا ہے، یہ ایکسپیرینس پیپل ہیں دونوں، نذیر صاحب اور مفتی مبشر صاحب، ہم لوگ ان کے ایکسپیرینس کے پورے نہیں اترتے۔ مفتی صاحب تو ابھی بولے بھی نہیں، مفتی صاحب تو یہ آئے نہیں، انہوں نے تو یہ کسی مائک بھی نہیں پڑھایا۔ یہ جو بول رہے تھے ان کا نام جو بھی ہے،
इब्तदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा जो भी है, ये जो साहिब हैं यहाँ पर अभी, जो दूसरे वाले नज़ीर साहब के अलावा, वो मैंने नोट किया है कि वो कोशिश करते हैं कि बहस करके बात करके एक जो बुरा अक्सर जब सामने आए तो मैं फौरन उसको पकड़ के बोल दूं कि ये जो सच है वो जो सच है वो सामने आ जाए, ये हम कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल, आप यही चाहते हैं ना, वो बुराइयों में से आप क्या बुराई की तरफ जाते आप हैं। क्या चाहती हैं कि इस सच के ऊपर कपड़ा डाल दिया जाए? नहीं, आपकी जो सोच है ना वो नेगेटिव है। बस अगर पॉजिटिव होता है मतलब तो अगर जुल्म को लोगों के सामने, अगर जुल्म को लोगों के डंडा सामने, नहीं मार रहा, कोई जुल्म नहीं है, डंडा नहीं मारा कोई। दुनिया में बहुत सारे लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से भी इससे डंडा लग जाता ना, मेरी बात सुन, अमतुल है सिस्टर का सर फट जाता, वो बेहतर था ना। नहीं, आप मेरी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? अब हजूर वो भी फट गया, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने वो भी तौफीक दी, वो भी फट गया। आप आगे चले। वो तो टांके लगे, ठीक हो गया होगा 2-4 दिन में। हाँ बस 2-3 बात सुने, हजरत मोहम्मद जमाने में भी बहुत सारी औरतें अंदर ही अंदर इस्लाम करती थी, अंदर ही अंदर वो रहती थी, वो नहीं ऊपर करती थी। अगर उनके साथ कोई जुल्म होता था तो वो ये नहीं मतलब था कि हजूर ये करते थे उनके खिलाफ। ये आप जैसे लोग शुरू से चले आ रहे हैं, जो नेगेटिव सोच के लोग होते हैं ना, वो हालात को अच्छा मतलब औरत के साथ जुल्म हो तो उसके ऊपर कपड़ा डाल देना चाहिए? नहीं, कपड़ा क्यों डालना चाहिए ना, और कोई उसको वहाँ पे ड्रम बजाओ, ढोलक बजाओ और डांस करो दाता सा वाले के लोग। लोगों को नहीं बताना चाहिए कि ये जुल्म कर रहे हैं लोग। राइट है उनका, राइट। अल्लाह ताला कहता है हर एक के उसके ऊपर पर्दा डालो है के। अच्छा, जुल्म के ऊपर पर्दा डालें, ये कहाँ अल्लाह ताला ने कहा है जुल्म के ऊपर पर्दा डालें? जुल्म नहीं है, घर में लगा के ना। एक सेकंड जरा जायदा सिस्टर, एक सेकंड ठहरे, क्या बोला अमतलाई सिस्टर आपने? मैं कह रही हूँ अल्लाह ताला कहता है पर्दा करा के ना, ताला लगा के दरवाजा बंद करके बाहर से चाबी लेके निकल जाओ। हाँ, औरत को अंदर बंद करके ताला लगा दिया, अल्लाह ताला के जुम्मे लगा रही। देखें इनका सोच, इनकी देखें। आप अपने देखे या जो आपके जमात का हो रहा है सारा दिन, मौलवी लोग क्या लोग करते हैं मस्जिदों में और मदरसों में, क्या कुछ वो नहीं। अब वो मौलवी और मदरसे उसकी तरफ चले। ये जो उनको पहले औरत के साथ सिस्टर हमारे ऐसा नहीं होता सिस्टर, ये जो हवा की बेटी के साथ जुल्म हो रहा है, मजहब की दूसरी बात होती है। आप सही करें अपने मजहब, अपने इस्लाम को। हाँ, हम अपने मजहब को सही करें। अपने घर में लड़कियों और बच्चियों के साथ क्या हो रहा है रोजाना पढ़ा करें। जो निदा नसर के साथ हुआ है वो हमारे घर में किसी जगह नहीं हो रहा। सोच नहीं होता आपको सिस्टर, जो निदा नसर के साथ हुआ है ना, वो हमारे पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं हो रहा। सबके साथ होता है, यहाँ पे रोजाना होता है। आपके वो खलीफा की बेटी है, कल भी मैंने देखी है कि लड़की को रस्सी से बंधा हुआ था और मार मार के उसका हशर कर दिया। ये आपके खलीफा की बेटी है, फायजा बीबी, जानती हैं? इसके हाथ आप लोग चूमा करती थी, ये वही फायजा है। अब वो सड़कों पे उन्होंने कुछ गलत किया होगा। हाँ, किया होगा। नहीं, वो मेंटल हो गई है। आप कहते वो पागल हो गई। गलत किसी को नहीं भेजते, किसी के साथ बेइंसाफी नहीं करते। हम लोग गलत होते हैं तो फिर होता है। अच्छा, हमारी आंखें और हमारे कान झूठ बोल रहे हैं, हमें क्या पता हो कि आप भी सच्चे हैं कि हमारी आंखों के सामने उनकी रिकॉर्डिंग आई है। आपके खलीफा साहब कह रहे चुप कर दो, उन्होंने तौबा करनी होगी। अगर आपने आंखों से देखा है तो उसकी बात करें। आपके खलीफा साहब उसको कह रहे हैं कि खामोश हो जो, उन्होंने तौबा शुबा कर ली होगी। ये सही कह रहे हैं आपके खलीफा साहब? चलो ठीक है ना, वो तो छुपाते हैं ना, इसीलिए तो कहते हैं हम लोग किसी के ऐप को छुपाओ। हाँ, छुपाना चाहिए। अगर आपकी बेटी के साथ ये जुल्म होगा, आप भी छुपाएंगे उसको? नहीं, गलत बात, हम तो किसी को हाइड नहीं करेंगे, इतना हाईलाइट नहीं करेंगे ना। अल्लाह करे कि किसी की बेटी के जालिम का साथ देंगे, जालिम का साथ देंगे, मजलूम का नहीं देंगे। हाँ, बिल्कुल के साथ ये खलीफा का साथ देंगे जिस खलीफा ने कहा कि उन्होंने तौबा शुबा कर ली होगी, तू चुप कर जा। होगी, आप होगी में बैठे हो मशकूक होके तो बातें करते हो आप स्टोरियां। ये आपके खलीफा साहब के अल्फाज हैं, आपके खलीफा साहब। सुनाओ रिकॉर्डिंग में। हमें नहीं चाहिए। आपका काम क्या है? आपके खलीफा हुजूर ने उस रोती बिलखती सिस्कियां लेती हुई बच्ची की आहोजार ना सुनी। वो रो रही थी, बिलख रही थी कि मुझे इंसाफ दो। बजाय इसके इन्होंने शैतानियत का साथ दिया, जुल्म का साथ दिया, और जो हक वाली बच्ची थी वो इंसाफ लेती
रोती रह गई। ये हमें एक अब क्रिश्चियन भाई भी बता रहा है, देखें ये हम आपकी जमात है, तो देख लें। अच्छा, अगर किसी की बेटी के साथ जुल्म हो ऐसा जिस तरह का वो निदा नसर बयान करती है, तो जायदा सिस्टर कहती हैं कि हमें चाहिए कि हम उसको कवर अप कर दें, उसको उसके ऊपर कपड़ा डाल दें, उसको अंडर द बेड कर दें, अंडर द कवर कर दें, क्योंकि वो बेटी है किसी की, छोड़ दो, पर्दा डाल दो। ये इंसाफ है आपका? ये अल्लाह की जमात है? ये इमाम मेहंदी की जमात है? ये आपके मसीह मौद आपको निजाम देकर गए हैं? ये है वो कुदरत सानिया? इस तरह की कुदरत सानिया का जिक्र करके गए थे रसाला अल वसीयत में मिर्जा साहब। मेरी बात सुने बुजुर्ग, आप और ये नजीर साहब हैं, दोनों को मैं माजर चाहती हूँ कि मैं बंद करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग फोन आ रहे हैं, मुझे पता है आपको फोन आ रहे हैं पीछे से। आपका कोई वजन नहीं है, आपको फोन आ रहे हैं, बातें कर करके ना दूसरों को परेशान कर रहे हैं, और आप अपना टाइम पास कर रहे हैं। आपको बहुत अच्छी मिल गई है टाइम पास करने की। आमर भाई, मसला सिर्फ इतना है कि वो बेटी दूसरों की है। बात हुई है, आप खामोशी से ये बात सुन रहे जिन हैं। बेटियों पे जुल्म हो रहा है ये दूसरों की बेटियां हैं, हमारी बेटियां नहीं है ना। हम तो पर्दा डालेंगे, हमारी बेटियां हो, बर्दाश्त पैदा करें, हौसला पैदा करें। हुजूर की नजर में जो ज्यादा चंदा देगा वो जना भी कर सकता है, उसको प्रोटेक्ट भी किया जा सकता है। बिना करने वाला ज्यादा चंदा दे रहा था, पैसे दे रहा था इनको, इसलिए हुजूर के लफ्ज के लिए इंसाफ करने को ये किया आपके हुजूर ने। अल्लाह ताला को दिया जाता, उनको नहीं दिया जाता। हुजूर से अपने गुनाहों पे पर्दा डालो, पर्दा डालो, पर्दा डालो। इंसाफ मांग रहे हो, उसको इंसाफ दो। हाँ, नहीं जो इंसाफ मांगे उस पर पर्दा डाल दो। जिन लोगों के ये ख्यालात हैं उनसे तो बात ही नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, ये सिस्टर के पर्दा डालो और आप खुश रहो। ये बेचारी पर जो हो रहा है वो बयान भी ना कर सके। जो इंसाफ मांगे उसको खामोश करवा दो और उसके मुंह पर टेप लगा दो और उसके ऊपर कपड़ा डाल दो, चादर डाल दो। ऐसे ही है ना? आप अपने घर में देगे पकाए, खुश हो जाए, चले। नहीं, हम खुश तो नहीं है, हमें तो अफसोस हो रहा है कि वो भी किसी की बेटी है। आपको मजा ले रहे हैं? नहीं, हमें तो अफसोस है, लेकिन अफसोस के साथ गुस्सा भी है, अफसोस भी है और गुस्सा भी है। नहीं, आप बिल्कुल मजा ले रहे हैं। मतलब लोग 200 यूरो महीने का देकर इस निजाम को सपोर्ट कर रहे हैं। ये वो निजाम है जो आप अपने बच्चों के मुंह से निवाला। टैप टैप करें, रिपोर्टें हो रही हैं, टैप टैप करें। 150 साल से चल रहा है ना, अल्लाह ताला चला रहा है उसको, 150 साल से चल रहा है और आगे भी चलेगा 300 साल और आगे भी चलेगा। आप लोग जैसे आपके बड़े कई आए मर गए, मेरी बात भी मर जाना है और इसी को मरते रहना है, देखते रहना है हदीसा के इंतजार में। आराम से हौसले से बात करो, पता नहीं है तो पीछे लगा। अब हौसला खत्म होगा, जवाब दे गए ना उनका। मैंने देखा ये बुजुर्ग जाके उस वक्त से ना यही कुछ कर रही है। प्यारी बहन, जोर मत लगाइए। क्यों गाली दी है? वो चंदे के ऊपर बात करिए। हालात दगरगूं देख शर्म नहीं आती? ऐसे लोग बैठे हुए हैं बदतमीज किस्म के लोग, जिनकी सोच ऐसी है। किसने आपके साथ बदतमीजी की है? किसने आपके साथ बदतमीजी की है? ये अभी इसने ये कहा चंदा देता है वो जिना कर सकता है, उसमें शर्म नहीं आई ये बात करते हुए? ये तो जो ज्यादा चंदा देता है, ये तो जो ज्यादा देता है उसकी जो है वो प्रोटेक्शन हो जाती है। इतने गंदे ख्यालात हैं आपके हुजूर मिर्जा मसरूर नहीं सिस्टर, उन्होंने देखिए वो तो क्रिश्चियन है, उन्होंने सिस्टर को गलत बात नहीं की है। आपके खलीफा साहब जो हैं वो अपने साले को प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो डॉक्टर मुबशर को प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो आमर को प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो मिर्जा मगफूर जिसको वो फूरी कह रहे थे उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। किस बेस पे, किस वजह से कर रहे थे? यही कि वो जमात के ओहदेदार थे। उनकी अगर अपनी बेटी होती तो क्या उसको भी यही कहते वो कि चुप कर जाओ बेटा, वो तो बड़े बड़े लोग हैं? कैसी बातें करती हैं आप दर्द दिल तो लेके आ जाती हैं कि ये हमारे बारे में आप कहती हैं कि ये गंदी जुबान इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने हक बोलना है तो हक वहां बोलें जहां बोलने की जरूरत थी। अगर कोई बुरा है तो खुद बुरा नहीं बनता। तो मिर्जा सिस्टर देखें, खलीफा साहब है ना, वो तो आपके लिए रोल मॉडल हैं। जो आपके रोल मॉडल हैं, जो आपकी जमात को हैंडल कर रही हैं, उनका जब ये करैक्टर है तो आप किसको आगे बातें सुना रही हैं यहाँ पे?
उनका करेक्टर A1 है, आप अपने करेक्टर की फिक्र करें। अल्लाह आप ताला बोली थी तब ये A1 करेक्टर है आपकी बेटी के बारे में, खुदा ना खास्ता ऐसा मसला नहीं, हमारी- आप अपनी होता तो बेटियों आप की यही बात कुछ कहती। करें, हमारी बेटियों की बात मत करें, अपनी बेटियों की हाँ ये देखें, अब आपको तकलीफ हो गई अपनी बेटी के बारे में, वो जो आपके तो चौथे पूरा हो। खलीफे की बेटी है नवासी है, उधर तकलीफ नहीं हुई? क्यों नहीं करें? जब झूठे पे अल्लाह की लानत डालते हैं तो कहते हैं बुलाओ हमारी औरतों को, तुम्हारी औरतों को, और झूठे पे अल्लाह की लानत डालें। हाँ। तो क्यों नहीं अपनी औरतों को बुलाते? जब नौबत आती है तो मिर्जा साहब की जब इज्जत की बात आती है, नबी पाक की इज्जत की बात आती है, तो खड़े क्यों नहीं करते अपनी बेटियों को, अपनी औलादों को? कहाँ पे छुपा के रखा हुआ है? मुझे तो ये आप लोग जो है, जब ये निदा और नसर का केस हुआ था किससे तो छुपाना आप है आप दोनों लोगों बहनों ने? में से किसी बहन ने छुपे आवाज नहीं है बुलंद तो की थी किससे इस पे? छुपे फिर रहे हैं? नहीं, आप दोनों जो सिस्टर्स बैठी हुई हैं, किसी ने आवाज बुलंद की थी? हम लोग जो थे, अल्लाह ताला का हुक्म है कि अतात करो, अल्लाह की नहीं अतात किसकी करें? जुल्म की इतात करनी है आपने, नाइंसाफी की इतात करनी है। अतात मारूफ सिस्टर, अल्लाह ताला का कहाँ पे हुक्म है कि आपने जुल्म और नाइंसाफी की इतात करनी है? हमें पता है कि वो गलत नहीं होते, वो होते ही नहीं गलत। नहीं, ये ठीक था जो उन्होंने निदा और नसर को कहा, ये ठीक था? नहीं गलत नहीं, मुझे नहीं पता, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो गलत देखिए जो आपके सामने चीजें हैं आप कहती हैं मुझे नहीं पता, ये नहीं, कौन सा उन्होंने इंसाफ गलत- है? कि उन्होंने खुद झूठ इसका बोला। मतलब है आप सिर्फ मुखालफिन पर बोलने के लिए आती हैं कि जो मुखालिफ है ये उनके खिलाफ बात आपने जो बोलना है, जो सामने अपने लोग हों। इनके साथ जो हुआ ये यही दुरुस्त तो है। आपके ये खलीफा बता साहब ने दें। सिखाया है ना आपको। आपको ये खलीफा बता साहब ने भी यही किया है, आपके जो खलीफा साहब नहीं, हैं आप- मसरूर साहब, उसने भी तो यही किया है। आपको किसने जिम्मा दिया कि आप हमारी बेटियां और हमारे खलीफा के मुकदमे करते फिरें? आप अपने आप को तो देखें। नहीं हम मुकदमा तो नहीं कर रहे ना, हम तो आपके डबल स्टैंडर्ड पे हमें बात नहीं कर रहे चाहिए, हैं हमें नहीं कि चाहिए। इधर आपको किसने हक दिया कि फिर लोगों के आके बातें करें आप? हम तो कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, हम तो रोक रहे हैं आपको। तो किसकी बातें कर रही हैं आप अभी? क्या कर रही थी कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, फलान जगह पे क्या हो रहा है, क्या कर रही थी आप? मैं आपको रोक रही हूँ कि ना बोले ना बोले। नहीं, आपने अभी जो बात की थी जिसके जवाब में आपको आमन नजीर भाई ने कहा कि आपके खलीफा ने क्या किया, आपने पहले बात की थी कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। माजरत की और उनको आराम से बताया कि ये अच्छी बात नहीं है। मैंने तो सुना हम है भी कहता। आराम से बता रहे हैं, हम क्या आपको मार तो नहीं रहे, हम भी आराम से बता रहे हैं मुझे तो कि आप मुखालिफिन के बारे में बात करने बड़ी बढ़ चढ़ के आ जाती हैं, पाकिस्तान में ये हो गया वो हो गया। इतनी जुर्रत आप उधर भी करती ना कि गलत बात हुई है उस पर स्टैंड ले। हम नहीं डरते, हम सामने वो आपका डर तो हमने देख लिया। बोलेंगे आप खलीफा साहब के खिलाफ कि उन्होंने गलत किया? कभी नहीं हो सकता, क्यों बोले? अभी आपके खलीफा साहब का इतना बड़ा कांड आपके सामने आ गया है कि वो एक लड़की को उनकी बेटियों जैसी है उसको धमका रहे हैं। वो आपको बड़ी हमदर्दी है, जाए आप उसको संभाल ले जाके फिर। नहीं, हमने तो उस वक्त भी आवाज बुलंद की थी निदा नसर के बारे में, हम तो उस वक्त भी मुखालफिन थे, फिर भी हमने आवाज बुलंद की। आप लोगों ने क्या किया? आपने उसको अपने घर में बिठाया हुआ है क्या? जो उसके हमने नहीं, तो आप लोगों ने भी तो नहीं ना बिठाया, जमात ने भी तो नहीं ना, जमात वाले तो धमकियां दे रहे थे। रोमांटिक खामोश रहो। आपके खलीफा साहब उसको धमकियां दे रहे थे कि चुप कर जाओ, खामोशी इख्तियार करो वरना जमात एक्शन लेगी। हाँ तो ये है आपकी जमात। फजूल किस्म के स्टंट में पड़े, क्यों पड़े स्टंट में? उन्हें सिर्फ अल्लाह की अच्छा, ये इबादत- फजूल है, ये अल्लाह की फजूल है इबादत मतलब करना कि किसी बच्चे की इज्जत खराब हो गई है, ये वो- आपके लिए वो फजूल बात दुनियादार नहीं है। है। वो अपनी इज्जत के मारे वो आवाज बुलंद कर रही है, शिकायत कर रही है मिर्जा साहब को, खलीफा साहब कोई नहीं को, कर ये रही, फजूल कुछ है। नहीं कर रही, किधर आप जाए झूठ वो? बोल रहे हो। उसको आप किधर झूठ जाना बोल चाहिए रहे हो। था? वो कोई नहीं करते, वो झूठ बोल अच्छा रहे हैं। हम झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, वो जो खलीफा साहब की ऑडियो वो भी झूठ है, सारे झूठ हो आप। सारी दुनिया ने अपने सुन लिया है। आप सारे दिन बैठे यही कुछ चीज तो करते रहते हैं, झूठ की अच्छा, अपने पास से वो जो यूके में जो केस लड़ते रहे हैं वो झूठ था सारा। बिल्कुल। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओके, अभी अल्लाह ताला आप लोगों पे रहम करे। आप लोगों की इतनी अल्लाह जुर्रत ताला नहीं है आप पे रहम करे। कि आप किसी गलत बात को डंके की चोट गलत कह सकें। नेगेटिव ना बने। मैं आप नहीं, नेगेटिव नहीं है ना सिस्टर। आप देखिए इस तरह के ज़हनी गुलाम बन गए हुए हैं आप लोग। आपकी ज़हनी गुलामी का ये आलम है कि आप एक हक बात के लिए भी नहीं कह सकती कि भाई ये बात गलत है। वो गलत हो ही नहीं सकते, हमारे खलीफा नहीं गलत हो सकते। हाँ, तो यही तो ज़हनी गुलामी है ना, यही तो गुलामी है। सही कहा था ना आपके खलीफा साहब ने, आपके खलीफा साहब ने ठीक ही तो कहा था। उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने अपना आप हमें बेचा हुआ है, हम जो मर्जी करें आपके साथ, आपने बेचा हुआ है, आप नहीं कुछ भी कर सकते। हाँ चलो ठीक है जी, हमने तो दीन के सर पे बेचा, हमने कुर्बानी दी। नहीं, दीन के सर पे कहाँ बेचा हुआ? दीन के सर पे बेचा होता तो अल्लाह रसूल का हुक्म है कि सच्ची गवाही दो, चाहे आपके अपने खिलाफ क्यों ना जाती हो, चाहे आपके माँ बाप के खिलाफ क्यों ना जाती हो, सच्ची गवाही दो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
सदके पता नहीं में कौन से आगे दीन के लिए हैं, बेचा है आपने भी। और उसके बाद जो मर्जी मिर्जा बोलो। साहब के दीन की बात करें, उसके लिए आपने खुद को बेचा अरे है। मिर्जा साहब नबी ये अल्लाह पाक का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलीफा का ये दीन नहीं है कि अल्लाह जुल्म का पे आप खलीफा है, अल्लाह ना का सिर्फ खामोशी खलीफा है। इख्तियार करें, वो बल्कि अल्लाह का उल्टा खलीफा है, आप किसी को मजलूम को कहते हो, क्रिटिसाइज करें। मजलूम अपने बेचारा जो जिस पर इल्जाम पहले किसी पे जुल्म करें। हुआ उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं आप। नहीं हमारे को हम कुछ नहीं करते। आप ये चुप दीन रहो। है आपका, तो आप इसको कहा करें हमने अपने दीन दीन को मिर्जा के संभालें। लिए अपने आप आप को अपने बेचा। दीन को सिस्टर संभालें। ऐसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बदनाम ना करें, आपकी आप मेहरबानी है। अपने आप को संभालें, अपने दीन को हमने संभाला हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने संभाला हुआ है, हमें कोई मसला नहीं है। आप दीन को हमारे यहाँ कानून मौजूद है, कोई गलत कारी करता है, कोई जुल्म करता है, हमारे कानून मौजूद हैं। अगले फांसी लगा देते हैं उसको। आपके खलीफा साहब क्या करते हैं? आपके खलीफा साहब करते चलो कुछ नहीं हो भी गया है आपके साथ तो भी चुप कर जाओ। आप जैसे खुदा की पनाह है। अल्लाह फांसी लगाएगा आप जैसों को जो गलत बात करेंगे। सिस्टर आप मुझे सिर्फ अपनी ईमानदारी से बता दें, दुनिया के किसी माशरे में ऐसा होता है कि मजलूम को कोई कहे कि अगर तुम्हारे साथ जुल्म हुआ भी है तब भी चुप कर जाओ? तौबा शौबा कर ली होगी उन्होंने। कोई है माशरा आपकी नजर में ऐसा? अल्लाह आप लोगों को हिदायत दे और हिम्मत दे कि आप कम से कम इतने बुराई, जो कि इतनी सरी बुराई है जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती, आप दुनिया के किसी गंदे से गंदे माशरे में चले जाए, वहां भी आपको ये मिसाल नहीं, उस पर भी आप आवाज नहीं उठा सकते। अल्लाह ही आप लोगों के हाल पे रहम करे, हम क्या कर सकते। फिर मुझे तो ज्यादा गुस्सा ये हजरत नून साहब पर है कि कसरे सलीब भी इनकी कर दी है, ये सलीब लेके फिर इनके पीछे चढ़े हुए हैं। हाँ यार जी, आपकी इनको भी नहीं जरा एहसास होता। हाँ ਨੂਨ ਸਾਹਿਬ 125 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਸਰੇ ਸਲੀਬ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਰੇ ਸਲੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬੈਠੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ 125 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਸਰੇ ਸਲੀਬ ਹੋਈ ਨੂੰ। ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਉਧਰਲੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਧਰਲੀ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ। मर्जियत कर रहे हैं, बड़े जोरों शोर ना हो रही है। कौन देंदा राती हजरत नून? ओए राती शुगर लगा जेड़ा, ओए होए अखीर हजरत नून बंदा जमात है। जिथे हुण जांदे ने ना मरज़ई नजर नहीं साहब ने माइक ऑन किया है, ओ शागिर्दो सुन लो शाह साहब दे भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार ये अभी ये जो सिस्टर हैं जाहिदा चली गई हैं? चली गई हैं जी, आपने माइक ओपन किया ना करते तो हो सकता है 2 मिनट और रुक जाते। ओहो, मैंने तो बात करनी थी, मैं इंतजार कर रहा था कि ये मौका मिले तो मैं बात करूं इनसे। तो मौका उन्होंने किसी को दिया ही नहीं, वो बोल ही इतना रही थी, खामोश ही नहीं हो रही थी। ओहो, हम तो महरूम रह गए, तबलीग से महरूम रह गए हैं। चलें, वो कई दफा ऐसे होता है कि बाहर बैठकर सुन रही होती हैं, आप बात करें, आपकी आवाज पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। नहीं मैं नहीं महरूम रही। अच्छा, आप का नाम क्या है मोहतरमा? आप भी खून लगा के शहीदों में शामिल हो गए हैं। शाह साहब ये अपनी हमारी सिस्टर हैं, अपना अकबर चौधरी साहब की सिस्टर हैं, ये हमारी बहन ये। और अच्छा अच्छा, अकबर चौधरी साहब ठीक। तो ये तो इन्होंने तो जमात छोड़ दी हुई है ना? नहीं, जमात के साथ ये मुअल्लक हैं, सस्पेंडेड हैं, बस ऐसे ही है। इन्होंने नहीं अभी छोड़ी, वो चौधरी साहब ने छोड़ी है। नहीं मुफ्ती साहब, ये जमात के साथ मुखलिस है, जमात इनके साथ मुखलिस नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सियालवी साहब खुशामदीद। अल्लाह का फजल है, मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप तमाम साथियों को आबाद और शाद रखे। आप बहुत बड़ी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आमीन। अभी मैं वो 2 खवातीन थी तो उनकी बातें सुन रहा था तो मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा था कि अगर कोई मर्द ये बात करता तो काबिल फहम थी, औरत ये बात कर रही थी। वो कहते हैं कि कुनद हम जिन्स ब हम जिन्स परवाज, कबूतर ब कबूतर, बाज ब बाज, कि हम जिन्स जो है वो तो एक दूसरे के दर्द को समझते हैं, औरत औरत के दर्द को समझती है, लेकिन मालूम नहीं कि कैसी औरतें थीं
जो बिल्कुल एक औरत से लाताल्लुकी का इजहार कर रही थीं और उसके दर्द को बिल्कुल महसूस नहीं कर रही थीं, तो मुझे इस बात पर बहुत ताज्जुब हुआ। अगर मर्द करते तो कोई ताज्जुब ना होता, लेकिन इन खवातीन की बातें सुनकर बहुत ज्यादा औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। आपने गलत, औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है, आपने गलत सुना। हाँ ये वैसे ये भी ठीक है, औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन मैंने कहा ना कि एक जिन्स अपने जिन्स के दुख दर्द को तो समझती है, ठीक है, वैसे तो दुश्मनी होगी, लेकिन जब किसी औरत के साथ ज्यादती हो तो उसके दर्द को तो उसे समझना चाहिए। जी भाई मर्द का दुश्मन है तो औरत की दुश्मन है। दो भाई आपस में कत्ल कर सकते हैं तो बहनें भी कर सकती हैं। फिर चलो फिर अगर दुश्मन है तो फिर मान लेते हैं, ठीक है, दुश्मनी ठीक उन्होंने की है, पर नहीं आप उनमें शामिल थी या कौन थी? दो बहनें दो थी वो मोहतरमात। जी जी सियारी साहब, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। बात ये है कि असल में ये लोग अगर निदा नसर के खिलाफ बोलते हैं ना, तो इन लोगों की पूरी कादियानियत जो है ना वो ज़मीन बोस हो जाती है, क्योंकि ये काम खुद मिर्ज़ा कादियानी करता था। जी यही काम इनके खलीफों ने किए, ठीक है। किताबें मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है। ये लोग कहते हैं जी तुम बुहतान लगाते हो, इल्ज़ाम लगाते हो। अभी वो मोहतरमा बैठी हुई थी तो किसी दोस्त ने कहा ज़िना की बात की। बात ये है कि अगर तो बगैर सबूत और दलील के मोहतरमा को चाहिए था कि उस कहने वाले को कहती कि इसका क्या सबूत है, कहाँ पे लिखा है। अगर तो वो सबूत दे देते तो फिर वो इल्ज़ाम नहीं था, बुहतान नहीं था। और अगर सबूत ना देते तो यकीनन वो इल्ज़ाम है, बुहतान है, ठीक है। तो ये है। अब ये लोग करते क्या हैं? इन लोगों को पता है कि हमारी किताबों में ऐसा लिखा हुआ है, मिर्ज़ा कादियानी ऐसे ही था, हमारे खलीफे भी ऐसे ही थे, हमारी जमात के सरकर्दा लोग, चलाने वाले लोग सारे ही ऐसे थे। वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, इनको सब पता है। ये इस वजह से हवाला और दलील तलब नहीं करते। उसूली तौर पे इनको चाहिए था कि दलील तलब करते। अब उल्टा ये हुआ है कि आमिर नज़ीर साहब ने उनको वो हजूर अलैहिस्सलाम की जो गुस्ताही की है इन लोगों ने, वो उसका पूरा स्कैन दिखाया है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसाइयों के हाथ का पनीर खा लेते थे, हालांकि मशहूर था कि सूअर की चर्बी इसमें पड़ती थी। और ये हजरत मसीह मऊद का एक पुराना मकतूब है जो कि अल फजल कादियानियों का अखबार है। मोरखा 22 फरवरी है 1924 का शुमारा है। इनकी वेबसाइट है alislam.org, उसके ऊपर रखा हुआ है। मोहतरमा ने हर चीज देख के कह रही है तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे बताइए कि चढ़ते सूरज को देख करके उसका कोई मुनकिर हो जाए तो लोग यही कहेंगे ना कि ये इसकी आंखों का कसूर है, ये नबीना हो गया है कि जो सारी दुनिया को एक सूरज नजर आ रहा है और इस अकेले को नजर नहीं आ रहा, तो यकीनी सी बात है इसकी आंखें खराब हो गई हैं, ये नबीना है जो सूरज को देख ही नहीं सकता। सारी लोगों को तो नजर आ रहा है। भाई वेबसाइट तुम्हारी है, हमने नहीं रखी, कोई मौलवियों ने नहीं ये रसाला बीच में रख दिया, ये अखबार नहीं रख दिया। तो उसको उस एक दलील को देख के मोहतरमा आगे से क्या उनका रवैया है, कह रही है वो तुम झूठ बोल रहे हो, मौलवी झूठ बोल रहे। असल बात क्या है? असल ये है कि इनके मुरब्बी लोगों ने इनको यही पट्टियां पढ़ाई हुई हैं कि जब कोई दलील देखो तो तुमने आगे से बस आंखें बंद करके ये कह देना है मौलवी झूठ बोलदा, मौलवी झूठ बोलदा। तो ये वो
जनाब तोते की तरह रटी रटाई बातें हैं चार। एक तो ये है कि मौलवी झूठ बोलदा, एक मौलवी आसमान के नीचे बंदर सुअर खंजीर, ये भी एक मौलवी आटा काम तोलदा, आटा काम नहीं, नहीं, तोलदा। नहीं, वो नहीं, ये कभी नहीं मैंने सुना। जो मशहूर, जो हर कादियानी लड़की और लड़के की नोके जुबान होते हैं नारे, वो बता रहा हूँ। एक तो मौलवी झूठ बोलदा,